हरे कृष्णा। तो आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपने भगवद गीता सेशन को। और हमने अभी तक जो है कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करी। और में मुख्यतः हमने जीवात्मा और जो ये स्थूल शरीर है उसके अंदर क्या भेद है उसके बारे में जाना। ये जो सेक्शन है ये ज्ञान या फिर सांख्य फिलॉसफी के बारे में भगवान बता रहे हैं। और this is going from 11th shloka till the 30th, and we are on the last leg of this section. Today we will try to complete from 26th to 30th shloka, and then we will enter into another section, that is sakam karam, that is performing prescribed duty, giving that gives enjoyment. Okay. So let's begin. Om Agyantimirandhasya Jnananjanashalakhya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yukta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakhanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. So today we are going to continue reading, and currently we are on the shlok number 26. So till now Krishna had described that the soul is invisible, inconceivable, it not changeable, and we should not grieve for the body because naturally it is perishable. The soul is unbreakable, insoluble, it can neither be burned or dried, it is everlasting, present everywhere, unchangeable, unimmovable, eternally existent. Soul cannot be cut by any weapons, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by wind. So, and the soul is changing clothes just like we are changing the bodies. The soul changes the bodies just like we are changing the clothes, vice versa. That is, this body is just like clothes. So sometimes we are not able to understand these aspects, so that's why these things are
बियॉन्ड आवर कंसेप्शन, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो भगवान इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियरली जो है बता रहे हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज गिवन। जस्ट लाइक एनालॉजी वाज गिवन that if we want to know, if a person wants to know about his father, so who he has to refer to? He has to go to his mother to ask, right? क्या आप डीएनए टेस्टिंग कराओगे सबका, पूरे दुनिया के सब लोगों का? Not possible, right? So that's why we have to accept the knowledge which is given in the Shastras as it is been described by Krishna. अथा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनयसे मृतां तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि. If, however, you think that the soul or the symptoms of life is always born and dies forever, you still have no reason to lament, O mighty arm. So Krishna is giving so many important aspects related to the soul and the body in answer to why Arjun should fight. Arjun should fight because his body is perishable. देखो आप समझो अर्जुन कि ये शरीर तो खत्म हो ही जाएगा, तो द्रोणाचार्य पितामह को आप युद्ध करके मार के भी उनके लिए भला ही कर रहे हो। उनको एक नया शरीर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बॉडी मिलेगा, बेटर होगा उनके लिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो युद्ध करो, क्यों सोच रहे हो कि का नुकसान होगा? क्या दिक्कत है? कोई नुकसान नहीं है, आप जो है युद्ध करो। इस तरीके से जो है भगवान कई तरीके से आ रहे हैं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, इसलिए वो कभी मरता नहीं है। There is always a class of philosophers, almost akin to the Buddhists, who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body. So these transcendental purports, translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, and he's explaining here that कोई ना कोई अलग अलग श्रेणी के लोग होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, ऑलमोस्ट अकिन टू बुद्धिस्ट, जो कि नहीं मानते, दे डो नॉट बिलीव इन सेपरेट एग्जिस्टेंस सोल बियॉन्ड द बॉडी। मतलब उनकी फिलॉसफी शरीर को निर्वाण अर्थात को के रिस्पेक्टिव जो पंचभूत है उसमें मिला देना, दैट इज द एम, दैट इज द गोल। कोई सोल नहीं होता, दैट इज देयर way of thinking. So when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, it appears that such philosophers existed. तो उस समय भी थे। तो इसका अर्थ क्या है कि मतलब भगवान कई सारे फिलॉसफीज जो अर्जुन सोच सकता था या उस टाइम में प्रेलेवेंट थी या फिर आज वो हैं, तो उनका भी आंसर भगवान यहाँ पे हमें इस श्लोक से दे रहे हैं कि जैसे बुद्धिस्ट नहीं मानते सोल में, तो उसी तरीके से उस टाइम में भी लोग थे जिनका नाम था लोकायातिकास एंड वैभाषिकास, तो नहीं मानते थे ऐसा कि आत्मा का भी जो है रूप होता है, आत्मा एग्जिस्ट करती है। मतलब दे आर लाइक टुडे कंटेम्परेरी साइंटिस्ट तरीके से। So such philosophers maintain that life symptoms take place at a certain mature condition of material combination. मतलब ये वही material scientists जैसे बताते हैं कि मैटर और स्पिरिट का कॉम्बिनेशन हमें तो नहीं पता, बट एटलीस्ट हमें ये पता है कि मैटर होता है, मैटर इवॉल्व करता है और इवॉल्व करने के बाद जो है के अंदर जान आता है। तो the modern material scientists and the material philosophers also think similarly. According to them, the body is a combination of physical elements, and at a certain stage of life, symptoms develop by the interaction of the physical and chemical elements.
The science of anthropology is based on this philosophy. Certainly, many pseudo religions now becoming fashionable in America are also adhering to this philosophy, as are the nihilistic non devotional Buddhist sect. तो यही चीज को भगवान यहाँ पे खंडन कर रहे हैं, इन्हीं एस्पेक्ट्स को। एक एस्पेक्ट है कि साइंस कहता है कि मटीरियल कॉम्बिनेशन हुआ, उससे लाइफ प्रोड्यूस हो गई एक सर्टेन स्टेज पे, है ना। एंथ्रोपोलॉजी आज के समय में कहते हैं। और कई सारे और भी ऐसे सूडो रिलीजन्स आ रहे हैं तो इसी चीज को। इवन इफ अर्जुन डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, as in the Vaibhashika philosophy, there would still have no cause of lamentation. No one laments the loss of a certain bulk of chemicals and stops discharging his prescribed duty. On the other hand, in modern science and scientific warfare, so many tons of chemicals are wasted for achieving victory over the enemy. तो बहुत सारे युद्ध आज के समय में लड़े जा रहे हैं, हो रहा है ना, देख रहे हैं। तो उसमें भी जो है हम देख कितना ज़्यादा मॉडर्न वॉरफेयर में लड़ाई झगड़ा करने में इतना सारा जो है क्या करा जा रहा है, केमिकल इन सब चीज़ों को वेस्ट करा जा रहा है, यूज़ करा जा रहा है। तो उसी एस्पेक्ट में जो है प्रभुपाद जी चीज़ को समझा रहे हैं कि कि अगर इतना सारा जो है इस फिलॉसफी में भी जो अगर अर्जुन विश्वास रखते तो कोई इसमें शोक करने की बात नहीं थी। क्योंकि इतने सारे बल्क केमिकल्स का डिस्चार्ज होना, वेस्ट होने से क्या नुकसान। On the other hand, in modern science, scientific warfare, so many tons of chemicals are wasted for achieving victory over the enemy. According to Vaibhashika philosophy, the so-called soul और आत्मा vanishes along with the deterioration of the body. तो इतने सारा है केमिकल। या फिर एक तरह से ये भी देखें कि अच्छा हम अगर बॉडी हैं तो युद्ध करा, हमने युद्ध लड़ा, तो इतने सारे शरीरों को अर्थात इतने सारे केमिकल बैग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या नुकसान, क्या दिक्कत, ये भी सोच सकते हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं, ह्यूमन राइट की क्या पॉइंट है यहाँ पे? पॉइंट है कि दे आर जस्ट बैग्स ऑफ केमिकल्स, somehow life produced in them. Why we should lament for the bags of chemicals as per science? Scientists तो ये बोलते हैं ना कि these are just bags of chemicals. This is their philosophy. So according to the Vaibhashika philosophy, the so-called Atma vanishes along with the deterioration of the body. So in any case, whether Arjuna accepted the Vedic conclusion that there is an atomic soul or he did not believe in the existence of soul, he had no reason to lament. According to this theory, since there are so many living entities generating out of matter every moment and so many of them are being vanquished every moment, there is no need to grieve for such incidents. तो अगर ये भी सोच लें कि आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सारे जो है बैग्स ऑफ केमिकल्स ही हैं, तो हर क्षण इतने सारे लोग मर रहे हैं, हर क्षण इतनी सारी बॉडीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इतने सारे लिविंग एंटिटीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, दे आर डाइंग। तो व्हाट इज देयर टू लैमेंट, व्हाई टू ग्रीव? और आ जाएंगे, कमी थोड़ा है। इफ देयर वर नो rebirth for the soul, Arjuna had no reason to be afraid of being affected by sinful reaction due to his killing his grandfather and teacher. तो अगर कोई रीबर्थ वो है ही नहीं, अगर सोल ही नहीं है तो रीबर्थ भी नहीं है, रीबर्थ नहीं है तो फिर काय का सिंफुल रिएक्शन, है ना। अगर अपने भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को मार भी दे, किस बात का शोक, किस बात का जो है पाप लगना। So, but at the same time, Krishna sarcastically addressed Arjuna as Mahabaho, mighty arm, because he at least did not accept the theory of Vaibhashikas, which leaves aside the Vedic wisdom.
इसलिए महाबाबू बोला सार्केस्टिकली, चलो तुमने इतना ये चीज को तो नहीं बोला, सोल ही नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब थोड़ा वैदिक ज्ञान से बोला आपने जो बोला, तो इसलिए उनको ऐसे बोल रहे थे। तो एज अ क्षत्रिय अर्जुन बिलोंग टू द वैदिक कल्चर एंड इट behooved him to continue to follow its principle। तो क्षत्रिय थे, वैदिक कल्चर को बिलोंग करते थे, और यही जो है उनको फॉलो करना चाहिए था इस प्रिंसिपल्स को। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको जरूर जो है हमें याद करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि देखो जन्म है जिसका, तो उसका मरण भी है, मरण है तो फिर वो नया शरीर भी मिलेगा, इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज हम ये क्या एस्पेक्ट्स हैं, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। जैसे देहिनोऽस्मि यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति 2.13। हम ये देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं, हम हमारा शरीर जवान छोटा बच्चा था, अब जवान है, फिर बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। ये हम देख पा रहे हैं कि हाँ, भगवद गीता का जो फिलॉसफी है, इट इज टोटली प्रैक्टिकल, इट इज टोटली रिलेटेबल, एप्लीकेबल। यस, तो शास्त्र जो है हम एक्चुअली जो है, जैसे साइंस कहता है वी कैन एक्सपेरिमेंट इट एंड प्रूव इट, so similarly we can see so many practical examples which Krishna is telling। किस तरीके से हम आत्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भगवान समझा रहे। कितने सारे एग्जाम्पल कल प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि आत्मा और परमात्मा का एनालॉजी था शास्त्र में। क्या बताया कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर दो चिड़ियां बैठी हैं, एक चिड़िया फल खा रहा है और दूसरा उसको विटनेस कर रहा है। सिर्फ वो जो विटनेस करती हुई चिड़िया है वो इंगेज नहीं होती है, पर वो कौन है? परमात्मा की तरह है। और जीवात्मा जो वो फल खा रहा है अपने कर्मों का, भुगत रहा है, वो क्या है? जीवात्मा कर्म नहीं कर रहा है उसको। इस तरीके से आत्मा और परमात्मा का एनालॉजी देके समझा रहे हैं। तो शास्त्रास आर वेरी प्रैक्टिकल, whereas sometimes the science itself becomes impractical। It is found that 125 questions are still unanswered by science. They cannot answer it even today in the modern 21st century। And then what they will do? Post dated check। आज नहीं कर पाए, हम कल करके दिखाएंगे। अब कल आप रहो ना रहो, तो वो 125 क्वेश्चन एज इट इज छूटे रह जाएंगे आपके लिए, एटलीस्ट तब तक आप जिंदा हो। तो दैट्स व्हाई we have to accept शास्त्र, already everything is researched in it। हमें बस शास्त्र को फिर से पढ़ना है, that is only research required to research the shastra, that is to study the shastra, that's all is required, nothing else। सब कुछ दे रखा है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई चीज मैन्युफैक्चर करा, उसको पूरा ब्लूप्रिंट पता है कि ये चीज कैसे वर्क करती है, तो अगर आप उसको मेंटल स्पेकुलेशन करके एनालिसिस करोगे, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्टली उससे जाके पूछ लो कि भाई कैसे बनाया। तो उसी तरीके से शास्त्र में जब सब कुछ दे रखा है, जिसने बनाया है पूरे संसार को, ब्रह्मांड को, हर एक चीज डिजाइन करी है इसके अंदर, तो उसने जो ये ब्लूप्रिंट दिया है, शास्त्र दिया है, उसको अगर हम समझ लेंगे तो दैट इज सफिशिएंट, isn't it? Why we need to depend on our senses? Why do we need to depend on our mind speculation? Just directly perceive what is given in the shastra. So easy, right? The one who has taken birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again। Therefore in the unavoidable discharge of your duty you should not lament। हमें भी जीवन में इस प्रिंसिपल को उतारना चाहिए। सर्विस बिफोर सेल्फ कहते हैं ना, तो हमें सर्विस बिफोर सेल्फ का अर्थ क्या समझना है कि भगवान की सेवा में कोई भी अड़चन हमें नहीं लानी चाहिए, चाहे कुछ भी हमारी पर्सनल लाइफ पे हो। कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति गया, still we should continue our services without any wavering, any flinching, अहेतु की अप्रतिहता, without motivation and without flickering। The one who has taken birth according to one's activities of life and after finishing one
terms of activity, one has to die to take birth for the next. In this way, one is going through one cycle of birth and death after another without liberation. चल रही साइकिल, चल रही रोटेशन, बिना मुक्ति के व्यक्ति जो है जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर. So this cycle of birth and death does not however support unnecessary murder, slaughter and war. तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को जो है मरना ही है तो चलो मार देते हैं ना, वॉर करते हैं ना, let's kill everyone, what is the issue, what is wrong in it? No, that is not support. But at the same time, violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. कैसे समझ सकते हैं इस चीज कि युद्ध करना नहीं चाहिए हमें पर फिर भी करना पड़ेगा? ये थ्योरी सपोर्ट नहीं करती कि आप जो है फालतू में युद्ध करो, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि युद्ध होना ही नहीं चाहिए. नहीं, अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर अर्थात कि ऐसे कुछ ना कुछ लोग रहेंगे सोसाइटी में जो कलेश करेंगे, उन कलेश वाले लोगों को जो है प्यार से तो नहीं समझाया जा सकता, समझ जाते तो फिर कलेश ही क्यों करते. इसलिए सोसाइटी में आप देखोगे तो एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेट करती है पहले सब लोगों को. नहीं देखो ये सही है, ये गलत है. कुछ लोग जो है नहीं फॉलो करते, कुछ लोग एजुकेशन लेते ही नहीं है, उद्दंड होते हैं, गलत काम करते हैं. फिर उनके लिए क्या दिया गया है, उन लोगों के लिए एक और मिनिस्ट्री बनाई गई है, होम मिनिस्ट्री. तो उसमें क्या आता है, पुलिस आती है, NIA आता है इत्यादि, ये सब स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती है, ठीक है नहीं. तो प्यार से नहीं मानेगा व्यक्ति ना, तो उसको क्या है फिर पिटाई करके उसको सीधा करा जाता है, जेल बनाया गया. जेल में नुकसान है, गवर्नमेंट को जेल बनाने में नुकसान है, क्योंकि तब हम टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो लग रहा है उसमें, ठीक नहीं. आप सब टैक्स पे करते हो, सारा पैसा कैदियों को खिलाने में लगेगा फिर, isn't it? Maintaining the criminals is cost, right? तो इसलिए है बहुत ही मुश्किल है इन चीज़ों को मेंटेन करना. Either you spend money on education or eventually you have to spend money on what? Maintaining the criminals. धार ग्रह नहीं चाहती गवर्नमेंट की ऐसा हो, बट फिर भी करना पड़ता है. तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वायलेंस की ज़रूरत है, पर अननेसेसरी वायलेंस की ज़रूरत है. दैट वे अगर हमें भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सो वी नीड दीज एस्पेक्ट्स, वी नीड मिलिट्री, वी नीड पुलिस एंड ऑल, बिकॉज दे विल बी सम एलिमेंट्स विल क्रिएट chaos. जो क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण को जो है फॉलो करते थे क्षत्रिय. ब्राह्मण क्या बताते थे क्षत्रिय को, शास्त्र में क्या दिया है उस हिसाब से करो. और जब क्षत्रिय उसका पालन करते थे तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाते थे. और ब्राह्मण जो है सही शिक्षा देते थे, कैसे जो है सब लोगों को जीना चाहिए, रहना चाहिए. जब वो नहीं समझा पाते थे या लोग नहीं समझते थे, फॉलो करते थे उनको, तो फिर किसका काम आ गया, क्षत्रिय का काम आ गया कि जो है ये देखो सुन नहीं रहे हैं सीधे सीधी बात, अब आपको जो है और टाइट होना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, राइट. तो क्षत्रिय फिर वहाँ पे एक्ट करते थे. तो दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दिस इज द वैदिक कल्चर एंड दिस इज ऑल बैलेंस्ड. वैश्य कम्युनिटी जिनका जैसा बिजनेस मर्केंटाइल है, उस हिसाब से कार्य करते. So the battle of Kurukshetra being the will of the Supreme was an inevitable event, and to fight for the right cause is the duty of a क्षत्रिय का धर्म है. ये क्या है, will of the Lord, भगवान की इच्छा है, इनएविटेबल इवेंट है, और सही धर्म की स्थापना करने के लिए इस चीज को भगवान चाहते हैं ये युद्ध, और ये क्षत्रिय का धर्म है, धर्म की स्थापना करना. Why should Arjun be afraid of or aggrieved at the death of his relatives, since he was discharging his proper duty? क्यों उसको जो है ऐसा सोचना चाहिए था कि मेरे रिलेटिव मर जाएंगे, क्योंकि वो अपना
धर्म निवार कर रहे थे. He did not deserve a break, should break the law, thereby becoming subjected to the reactions of sinful acts, of which he was so afraid. He did not deserve to break the law. जो धर्म है वो नहीं तोड़ना चाहिए. तो ये भी एक पाप है, तो अपना धर्म को निर्वाह ना करना. So by avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives. वैसे भी नहीं रोक पाते. And he would degrade to the selection of the wrong path of action. तो वो भी गलत होता है. तो मतलब अगर वो युद्ध करें तो गलत, ना करें तो भी गलत. ऐसी सिचुएशन में अर्जुन आ गए. पर उनके लिए यहाँ पे क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा कि तो उनको बताया जा रहा है जो क्षत्रिय धर्म है उसके अकॉर्डिंग वो जो है इस चीज़ को फॉलो करें, ना कि भगवान मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, ये मैं ऐसा सोचता. तो उसी तरीके से हम भी जो है मेंटल लेवल पर रह के क्या करते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं. तो rather this we should follow the authority, we should follow the guru, we should follow the instructions of Bhagavad Gita, follow what Krishna is telling, then there will be no disturbance. अव्याक्ताद्यनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तानि दीनानि नवेव तत्र का परिदेवना. All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So what need is there for lamentation? तो ये जो चीज़ है ये रिलेटेड है क्रिएशन से. ये मटेरियल यूनिवर्स है, इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं. एक एनिहिलेटेड स्टेज है, मतलब जब सृष्टि का विलय हो चुका है, विलय हो चुका है वो, तो वो सब क्या है, महाविष्णु भगवान के पुरुष अवतार हैं. वो जो है कारण सागर में शयन कर रहे हैं और उनके जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके रोमकूपों से जो है कई सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं. हर एक ब्रह्मांड में वो जो है एंटर करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, सेकेंड प्लानरी एक्सपेंशन पुरुष अवतार. और फिर उनकी कमल नाभि से जो है ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं. इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं, जो जिनसे सारे एक ब्रह्मांड में अलग अलग भगवान के अवतार आते हैं. और वही जो है परमात्मा है हर एक जीवात्मा के हृदय में. तो जब ये सृष्टि का विलय होता है, लाइक ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड वापस जो है कारणोदक्षाई विष्णु के दिव्य शरीर में चले जाते हैं वापस, जब वो इनहेल करते हैं श्वास अंदर खींच, तो सारी जीवात्माएं भी जो हैं वो वापस चली जाती हैं. और फिर जब से वो सांस छोड़ते हैं सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं. और हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो है वो दृष्टिपात जब वो करते हैं तो सारी जीवात्माएं जो हैं वो वापस इन सब ब्रह्मांडों में जाती हैं. अपने अपने जो इच्छाएं, उनके कर्म जो थे उस हिसाब से उनको आगे के शरीर मिलते हैं, उनकी आगे जो किस्मत है, डेस्टिनी है, उस हिसाब से वो आगे अपना कार्य फिर कंटिन्यू करते रहते हैं इन दी साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, जब तक वो ये ना समझ जाए कि मेरे को जो है भगवान कृष्ण की करनी है. तब उनको मौका मिलेगा इस कारागार, इस भौतिक संसार से निकल के वापस वो जो है भगवान की सेवा में लगे. तो ये जो है अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट और फिर से अनमैनिफेस्ट स्टेजेस, तो उसी एस्पेक्ट को जो है भगवान बता रहे हैं कि क्या ज़रूरी है, क्या शोक करने की बात है. तो ये एक एस्पेक्ट. So accepting that there are two classes of philosophers, one believing in the existence of the soul and the other not believing the existence of the soul, there is no cause for lamentation in either case. Non-believers in the existence of the soul are called atheists by followers of Vedic wisdom. Yet even if for argument's sake
we accept this atheistic story, there is still no cause for lamentation. Apart from the separate existence of the soul, the material elements remain unmanifested before creation. वो जो है प्रधान के रूप में, मतलब प्रधान इन द सेंस ऐसे समझ लो जैसे आपको कुछ खाना बनाना है तो आप सामग्री लेके आए, सब्जी लेके आए, मसाले लेके आए, दे आर एग्जिस्टिंग सेपरेटली, राइट। एंड मैनिफेस्ट स्टेज में मतलब वो सब्जी बन गया, पक के तैयार हो चुका है, दैट इज द मैनिफेस्टेड स्टेज ऑफ द सब्जी। और फिर जब उसको आपने खा लिया वो अनमैनिफेस्ट हो गया फिर से, उस तरीके से। फ्रॉम दिस सटल स्टेट ऑफ नॉन मैनिफेस्टेशन कम्स मैनिफेस्टेशन, just as from ether air is generated from air, fire is generated from fire, water is generated, and from water earth becomes manifest. So from the subtle to the gross it manifests. तो ये श्रीमद् भागवतम में जो है और डिटेल में समझ पड़ सकते। तो सटल जो है, सबसे सटल क्या है? ईथर, स्पेस। फिर उस सटल एस्पेक्ट से एयर, एयर से फायर, फायर से वाटर, वाटर से अर्थ मैनिफेस्ट होता है। कैसे होता है उसका डिटेल समझना थोड़ा सा मुश्किल है और समझाना भी, बट फॉर द टाइमिंग इट हैपन्स। हाउ यू वांट टू रीड इन डिटेल, go to Srimad Bhagavatam and you will get third canto, starting के chapter. So from earth many varieties of manifestation take place. Take for example a big skyscraper manifested from the earth. When it is dismantled, the manifestation becomes again unmanifested and remains as atoms in the ultimate stage. तो प्रभुपाद जी एक दे रहे हैं कि अर्थ से जो हमने skyscraper, मिट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, तो बनाया और फिर जब उसको डिसमेंटल करा फिर वो एटम रूप में फिर से आ जाता है। So the law of conservation of energy remains, but in course of time things are manifested and unmanifested, that is the difference. Then what cause is there for lamentation in the stage of manifestation or in unmanifestation? Somehow or other, even in the unmanifested stage, things are not lost. Both at the beginning and the end, all elements remain unmanifested, and only in the middle are they manifest, and this does not make any real material difference, right? तो बिगिनिंग और एंड में अनमैनिफेस्टेड ही है, मिडिल में मैनिफेस्ट हो भी गया, क्या फर्क है? दिस इज ऑल हाउ द मटेरियल यूनिवर्स इज वर्किंग। दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट्स द टेम्परेरीनेस, only for some time it is meaning manifest. And if we accept the Vedic conclusion as stated in the Bhagavad Gita that these material bodies are perishable in due course of time, antavantam ime dehe, but that the soul is eternal, nitya syoktaha sharirinaha, then we must remember always that the body is like a dress. Therefore, why lament the changing of a dress? The material body has no factual existence. material body का कोई factual existence है ही नहीं। It is something like a dream. क्या है? ड्रीम की तरह है। It is like a dream. और हम इसको सोचते हैं नहीं ये तो factual है, ये तो real है। ऐसे कैसे ड्रीम बोल सकते हैं? हाउ कैन इट बी ड्रीम? इन अ ड्रीम वी मे थिंक ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई और सिटिंग ऑन अ चैरियट एज अ किंग, बट व्हेन वी वेक अप वी कैन सी दैट वी आर नाइदर इन द स्काई नॉर सीटेड इन द चैरियट। सपने में हम ये सब सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। So the Vedic wisdom encourages self-realization on the basis of non-existence of material body. Self-realization का अर्थ क्या है? Non-existence of material body. Therefore, in either case, whether one believes in the existence of the soul or one does not believe in the existence of soul, there is no cause of lamentation for the loss of the body. किसी भी तरीके से देखें,
चाहे माने ना माने आत्मा है कि नहीं है, तब भी जो है हमें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवे इट विल अगेन बिकम अनमैनिफेस्ट इन सम टाइम। तो होना ही है, इट इज नॉट पॉसिबल इट विल स्टे फॉरएवर। तो किस तरीके से जो है आत्मा को देखा जाता है इस श्लोक में जो है बहुत अच्छे से जो है बताया जा रहा है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। Some look on the soul as amazing, आश्चर्यवत्, amazing है soul. Some describe him as amazing, आश्चर्य, बहुत ही अनोखा है. And some hear of him as amazing, सुनते हैं क्या आश्चर्यजनक बात है, ऐसा होता है आत्मा. While others, even after hearing about him, cannot understand him at all. कई लोग समझते सुनते हैं, no, I can't understand this thing. It's too high for me to understand. Some other way, maybe some other time, I'll try to understand it. Too complex, Hinduism is very complex. So many gods, Anyway, तो इस तरीके से भी कुछ लोग कह सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा. So since Gita Upanishad is fully based on the principles of Upanishad, it is not surprising to find this parallel passage in the Katha Upanishad. तो इसी चीज को एक और जो है तरीके से कथा उपनिषद में बताया, क्योंकि ये जो भगवद गीता है इसको क्या बताया, गीता उपनिषद बताया गया है. उपनिषद के प्रिंसिपल्स पे आधारित है ये भगवद गीता. तो उसी तरीके से सिमिलर एक जो है श्लोक आता है कथा उपनिषद 127. क्या श्रवणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्यः श्रवणतोऽपि भागो अयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्या लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुषितः. The fact that the atomic soul is within the body of a gigantic animal, in the body of a gigantic banyan tree, and also in the microbe germ, millions and billions of which occupy only an inch of a space, is certainly very amazing. है ना. देखो हाथी का तो शरीर बड़ा होता है, जिराफ, व्हेल ना, कितनी बड़े हैं जीव जंतु हैं ये, उन सबके शरीर को एक छोटी सी आत्मा चलाती है. और इतने छोटे से स्पेस में कितने सारे बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, उन सब में जो है 6 चेंजेस ऑफ लाइफ हम जो हमने डिस्कस करे होते हैं. यस, तो उसमें भी सोल है, वो भी लिविंग है. ये सारी आत्माएं हर जगह चारों तरफ है, और इतने सारे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शरीर को चला रही हैं, है कि नहीं. Men with a poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of the individual atomic spark of spirit, even though it is explained by the greatest authority of knowledge, who imparted lessons even to Brahma, the first living being in the universe. Owing to a gross material conception of things, most men in this age cannot imagine how such a small particle can become both so great and so small. तो ये ज्ञान जो है भगवान कृष्ण ने जो है ब्रह्मा जी को दिया. तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे मुह्यंति यत सूर्यः. ये ज्ञान किसके द्वारा समझाया जा रहा है, भगवान कृष्ण के द्वारा, जिन्होंने जो है ब्रह्मा जी को भी जो है ज्ञान दिया था. और ये सारी जो चीजें हैं बहुत ही मुश्किल है समझना, क्योंकि इतनी बड़ी चीज को चलाना इतनी छोटी चीज के द्वारा कैसे है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है समझ. तो इसलिए इसको क्या बताया गया है. सो men look at the soul proper as wonderful either by constitution or by description. सुन के समझ के या कंसेप्ट वाइज ही जो है बड़ा उनको वाह क्या बात है.
Illusioned by the material energy, people are so engrossed in subject matters for sense gratification that they have very little time to understand the question of self-understanding, even though it is a fact that without this self-understanding, all activities result in ultimate defeat in struggle for existence. तो सब लोग जो हैं क्या कहते हैं, वी डोंट हैव टाइम, नो टाइम, स्वामी जी नो टाइम। प्रभुपाद जी अमेरिका जब गए तो देखे कि लोग जो हैं ऐसी भौतिकता में लिप्त हैं। भारत में थे तो लोग क्या बोलते थे, हम अरे हमारे पास टाइम नहीं है सब पढ़ने का। आपकी प्रभुपाद जी बैक टू गॉड मैगजीन जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो लोग चाय पियेंगे, चाय 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 है ना, उसके लिए टाइम है लोगों के ऊपर। अखबार पढ़ेंगे, चाय पीते, न्यूज़ पढ़ेंगे, सुनेंगे रेडियो में, मैच देखेंगे क्रिकेट का, पर ये चीज़ जानना सुनना कि भाई आप कौन हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके लिए स्वामी जी नो टाइम। तो प्रभुपाद जी ने आर्टिकल लिखा नो टाइम, समझाया इन्हीं एस्पेक्ट्स को कि व्यक्ति जो है सो कॉल एडवांसमेंट के पीछे भाग रहा है, पर वो यही नहीं सोच रहा है, समझ रहा है कि वो कौन है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उसी तरीके से भौतिक संसार के सारे लोग क्या हैं, क्या चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं और अब नहीं जानना चाहते सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो इसलिए वो क्या है, डिफीट, इट रिजल्ट्स इन द अल्टीमेट डिफीट फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। इतनी मेहनत कर रहे हैं ना हम अपने पेट को पालने के लिए, we want to live, we want to survive, but for what, the question is for what are we trying so much hard, day and night labor तरह काम कर, ये जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, पर उसके लिए टाइम ही नहीं है जानने के लिए। Perhaps they have no idea that one must think of the soul and thus make a solution to the material miseries। तो अगर हम आत्मा के ज्ञान के बारे में जानेंगे तभी जो है हम अंकुश लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं मटेरियल मिजरीज के ऊपर, अन्यथा नहीं। So some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes owing to ignorance, they are misguided by acceptance of the super soul and atomic soul as one without distinction of magnitude. It is very difficult to find a man who is perfectly understanding the position of the super soul, the atomic soul, their respective function and relationships, and all other major and minor details। तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि सही चीज़, सही ज्ञान रख पाते हैं कि परमात्मा के क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, जीवात्मा के क्या लक्षण हैं। और कई लोग तो यही सोच लेते हैं परमात्मा और आत्मा एक ही है। तो it is still more difficult to find a man who is actually derived full benefit from the knowledge of the soul and who is able to describe the position of the soul in different aspects। और मुश्किल है ऐसा व्यक्ति को ढूंढ पाना जो व्यक्ति आत्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान रखता है, समझा सके। बट इफ somehow or other one is able to understand the subject matter of the soul, then one's life is successful। पर किसी भी तरीके से अगर हम समझ जाएं जीवात्मा के बारे में, तो हमारा जीवन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। हम सब सक्सेस चाहते हैं, हम सब सक्सेस चाहते हैं, पर हमें ये नहीं पता सक्सेस क्या है, कैसे प्राप्त करें। हर कोई सोचता है कि पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, जॉब मिलेगा, है ना, गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, दैट इज सक्सेस। दैट इज नॉट रियल सक्सेस, दैट इज टेम्पररी। कितने जन्म हमने लिए, कितने जन्मों में क्या क्या उपाधि मिली होंगी, राजा भी रहे होंगे, ब्रह्मा भी रहे होंगे, पर वो सब खत्म। And now again we are struggling for existence। So the easiest process for understanding the subject matter of self, however, is to accept the statements of Bhagavad Gita spoken by the greatest authority, Lord Krishna, without being deviated by other theories। But it also requires a great deal of penance and sacrifice, either in this life or in the previous ones, before one is able to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead। बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो है, बट करना तो पड़ेगा, चाहे पिछले जन्मों में हम तपस्या करें, चाहे इस जन्म में या आने वाले में भी। बिफोर वन इज एबल टू एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। इसलिए बताया क्या गया है, वो व्यक्ति समझता है बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञान वाम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसा जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट करता है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वासुदेवम सर्वयति स महात्मा सुदुर्लभा, बहु नाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्म लेता है, ज्ञान वाम माम प्रपदन्ते, बहुत सारे ज्ञान विश्लेषण करते करते जो है इस निष्कर्ष पे पहुंचता है जन्मों के बाद, वासुदेवम ही सर्व इति,
स महात्मा सुदुर्लभाः. So Krishna can, however, be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way. So इसलिए हमारे पास शिला प्रभुपाद जी के डिवाइन भक्ति वेदांत पर्पट्स हैं. यही कृपा है, हमारे को संग मिल रहा है, कृपा मिल रही है शुद्ध भक्त की. इन पर्पट्स के थ्रू जो है हम भगवान की वाणी को समझने का प्रयास तो कर सकते हैं, कुछ तो जान पाएंगे. और कोई और रास्ता है. देहे नित्यम अबाध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तपसोचितुम् अर्हसि. O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. कभी मारा नहीं जा सकता आत्मा को. Therefore you need not grieve for any living being. जो है किसी जीवात्मा के लिए को शोक करने की जरूरत नहीं है. मत चिंता करो, बस युद्ध करो. हे भरत, just fight. The Lord now concludes the chapter of instruction on the immutable spirit soul. In describing the immortal soul in various ways, Lord Krishna establishes that the soul is immortal and the body is temporary. Therefore, Arjuna as a Kshatriya should not abandon his duty out of fear that his grandfather and teacher Bhishma, Drona will die in the battle. भगवान यहाँ पे जो है कंक्लूड कर रहे हैं आत्मा ज्ञान में, और आत्मा को अमर और शरीर को जो है अनित्य डिक्लेयर कर रहे हैं. अर्जुन एज अ क्षत्रिय जो है उनको अपनी ड्यूटी को पालन करना चाहिए, नहीं डर के भागना चाहिए कि जो है उनके भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो है इस युद्ध में मारे जाएंगे. ऑन द अथॉरिटी ऑफ श्री कृष्णा वन हैज टू बिलीव दैट देयर इज अ सोल, that there is a soul different from the material body, not that there is such a thing as soul, or that living symptoms develop at a certain stage of material maturity resulting from the interaction of chemicals. ये नहीं समझना कि आत्मा नहीं होती, ये नहीं समझना कि शरीर कुछ लेवल पे पहुंच जाता है, डेवलप हो जाता है, तब जो है लाइफ आती है. So the soul is immortal. Violence is not encouraged, but at the same time of war, it is not discouraged when there is actual need for it. आत्मा हमारा ठीक है, पर इस चीज का मिसयूज नहीं करना कि जो है युद्ध करो, मारो लोगों को, बट जब जरूरत है उसकी युद्ध करने की तो हमें जो है करना है. That need must be justified in terms of the sanction of the Lord and not till now the signs of soul chapter. And so far Krishna has explained the science of soul Atma Gyan to induce Arjuna to fight. To produce steadiness in this knowledge, now Krishna speaks lesser principles that promise material benefits by performing actions with personal desires काम कर. So in the following section जो हम कल discuss करेंगे, I will elaborate on 2.2, in which he said that avoidance of prescribed duty leads not to higher planets but to in के बारे में काम कर्मा performing prescriptions. Thanks a lot. Hare Krishna. Guru will Prabhupada.